Hello 12th class. Today we are start interest on capital. Our last topic. Let us continue this topic again. Ashok and Mukesh are partners. Their capital accounts are shown the balance on 1st April 2015 as rupees 3 lakh and 4 lakh respectively. On 1st August 2015 they introduced further capitals of rupees 50,000 and 40,000 respectively. Mukesh withdrawn 15,000 from his capital and on 1st March 2016 interest is allowed at 6% on the capital. Compute the interest on capital for the year ending 31st March 2016. तो ये क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में अशोक और मुकेश दो पार्टनर्स हैं और उनकी कैपिटल ओपनिंग कैपिटल 1st अप्रैल 2015 इस ओपनिंग कैपिटल गिवन है. कितने रुपए? 3 lakh and 4 lakh. 4 lakh and 3 lakh. And after that on 1st August they introduced fresh capital. Fresh capital मतलब new capital. Means new capital introduced rupees 50,000 by Ashok and 40,000 by Mukesh. After that on 1st March 2016 Mukesh withdrawn rupees 15,000 from his capital and interest rate is 6% per annum. 6% per annum. Compute interest on capital for the year ending 31st March 2016. Means 1st April to 31st March 2016 हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी. नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर अशोक कैपिटल. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन अशोक कैपिटल. नाउ फर्स्ट फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st जुलाई इन्होंने अपनी कैपिटल को 1st अप्रैल को इन्होंने लगाया था कितना? 3 लाख. आफ्टर दैट जो चेंज आया 1st अगस्त को चेंज आया और 50,000 इन्होंने इसमें ऐड कर दिए. तो पहले क्या करेंगे? 1st अप्रैल टू 31st जुलाई ये फाइंड आउट करेंगे. तो वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st जुलाई. दैट इज देयर हिज कैपिटल इज 3 lakh and the rate of interest 6% and the month from 1st April to 31st July that is 4 months. 4 month की इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जो कि 6,000 रुपीज कैलकुलेट होगी. नेक्स्ट आफ्टर दैट फर्स्ट अगर 50,000 प्लस किए इन्होंने. नाउ हिज कैपिटल इज 3,50,000 फ्रॉम दिस डे. सो 1st August to 31st March that is 8 months and capital 3,50,000. So now interest on capital is 3,50,000 into 6% into 8 by 12 that is 14,000. So total interest on capital 6,000 plus 14,000 and 20,000. यानी कि टोटल कैपिटल इंटरेस्ट कितनी होगी? 20,000 की इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी. Now we calculate interest on capital for मुकेश. मुकेश की इंटरेस्ट कितनी बनती है उसकी कैपिटल पे? तो ऐसे फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st जुलाई यानी 4 मंथ्स की इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट होगी. उनकी कैपिटल कितनी है? 4 लाख. 4 लाख इंटू 6% इंटू 4 by 12 इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. ये से काट देंगे, ये से कट जाएगा और आएगा 8,000. एंड सेकंड फ्रॉम 1st अगस्त टू 29 फेब. क्यों? इन्होंने नेक्स्ट चेंज जब किया है 1st मार्च को, तो 1st अगस्त टू 29 फेब दैट इज 7 months. तो आफ्टर दैट देयर कैपिटल चेंज 4,40,000. व्हाई? क्योंकि उन्होंने 40,000 इस कैपिटल में ऐड कर दिए थे. 4,40,000 into 6% और 7 by 12 because 1st August to 29 Feb 7 मंथ्स होते हैं. तो 7 मंथ्स की कैलकुलेट करेंगे
ये इससे कट जाएगा, $15,400. Now, after 29th Feb means first March he withdraw these 15,000 from his capital. Before change 4,40,000. After change, after withdrawing, his capital is 4,25,000. Now 4,25,000 into 6% and 1 month. 1st March to 31st March. Calculate this. ये इससे काटते हैं 2125. Now total interest on capital 8,000 plus 15,400 plus 2125 कितना हो जाएगा 525 and 5 25,525 ये इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनती है ओकेसीडी. ओके, सो स्टूडेंट वी हैव कम टू नो दैट interest on capital is calculated always on opening capital when the question not given opening capital and given only closing capital. So first of all we find out opening capital. So now we learn that how to calculate opening capital. Okay, so we calculated opening capital by this statement, calculation of opening capital. So first of all we post closing capitals. Closing capital 31st March वाली, तो इसे यहाँ पोस्ट करेंगे एंड इस क्लोजिंग कैपिटल में हमें क्या ऐड करना होगा, ड्राइंग्स ऐड कर देंगे जो बिफोर लेस की होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ऐड कर देंगे, इन तीनों का टोटल करेंगे. इस टोटल में से हमें प्रॉफिट जो कि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनकी कैपिटल में प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है उसे माइनस कर देंगे यहाँ पे दोनों में से. और यदि पार्टनर्स ने न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी ड्यूरिंग द ईयर उसे हम यहाँ पे माइनस कर देंगे. अगर दोनों ने इंट्रोड्यूस की थी तो दोनों के में से माइनस हो जाएगा. यदि किसी एक पार्टनर ने करी थी, सपोज ए ने नहीं करी थी तो एक में डैश लग जाएगा, इसने करी थी तो इसके में से माइनस हो जाएगा. अगर दोनों ने की है तो दोनों के में से माइनस हो जाएगा. माइनस होने के बाद जो कैपिटल आएगी उसी कैपिटल को हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल. तो अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो क्या करें, पहले ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट किया जाएगा बाय दिस स्टेटमेंट. नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके, नाउ A and B are partners sharing profits 3:2. Their capitals at the end of financial year 2013-14 were rupees 6 lakh and 3 lakh respectively. At the end of financial year. Okay, so ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है. इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है. After that, during the year 13-14, A's drawings were rupees 80,000 and the drawings of B were rupees 40,000, which had been duly debited to partners' capital account. यानी ये डेबिट हो चुकी है. Profit before charging interest on capital for the year was rupees 80,000. The same had also been credited in their profit sharing ratio. और ये प्रॉफिट भी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अपनी कैपिटल में ऐड हो चुका है. बी हैड ब्रॉट न्यू कैपिटल ऑफ रुपीज 70,000 ऑन 1 अक्टूबर 2013. बी ने नई कैपिटल लगाई है 1 अक्टूबर 2013 को. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% per annum फॉर द ईयर एंडिंग 2013 एंड 14. इस ईयर के लिए हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है, ये
एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, हमें क्या करना होगा, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, सो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ वी अंडरस्टैंड फॉर फाइंडिंग आउट इंटरेस्ट ऑन, फॉर नाउ वी अंडरस्टैंड how to calculate opening capital by this statement. So let's take calculation of opening capital. First of all, we post closing capital. Closing capital is 6 lakh and 3 lakh. A की 6 lakh है, B की 3 lakh है. And after this add drawings. इसमें drawings add कर देंगे और total हो जाएगा 6,80,000 and 3,40,000. After that लेस प्रॉफिट, प्रॉफिट 80,000 रुपीज का फर्म को प्रॉफिट हुआ था, इस प्रॉफिट में से 3:2 में इसे डिस्ट्रीब्यूट करके माइनस कर देंगे, तो 48,000, 80,000 का 3/5 करेंगे, 80,000 का इंटू 3/5 करेंगे एंड 80,000 का 2/5 करेंगे, तो 3/5 करेंगे तो आएगा 48,000 और 80,000 का 2/5 करेंगे तो आएगा 32,000। ये दोनों माइनस हो जाएंगे और माइनस होने के बाद, डिडक्ट होने के बाद इनकी कैपिटल आ जाएगी 6,32,000 एंड इनकी आ जाएगी 3,80,000। नाउ लेस न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल ए ने तो कोई न्यू कैपिटल नहीं लगाई थी, लेस हो जाएगा, इन्होंने न्यू कैपिटल लगाई थी 70,000 की, ये इनमें से माइनस हो जाएगा, ये आएगा 6,32,000 एंड ये आएगा 2,38,000। ये भी इनकी क्या बन जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल है, इसी पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी होगी। तो यू सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट व्हाट ओपनिंग कैपिटल। इन दिस क्वेश्चन ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, सो वी फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग कैपिटल। नाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए। ओपनिंग कैपिटल में हमें एक ही ओपनिंग कैपिटल 6,32,000 हमने फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए 6,32,000 आई थी इनकी ओपनिंग कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी गिवन है 12% और होल ईयर की कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए मंथ का मल्टीपल करना जरूरी नहीं है। तो 6,32,000 into 12%, इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रही है 75,840। एंड नाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बी। बी की ओपनिंग कैपिटल थी 2,38,000, 2,38,000 का 12% करेंगे तो आएगा 28,560। उन्होंने न्यू कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करी थी, तो उनकी न्यू कैपिटल पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी। उन्होंने जो 70,000 इंट्रोड्यूस करेंगे वो करेंगे 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, ये होते हैं 6 मंथ। तो 70,000 पे 12% की इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगी बट फॉर ओनली 6 मंथ, 6 मंथ के लिए होगी, तो ये आएगी 4,200। नाउ द टोटल इंटरेस्ट ऑफ बी इज 32,760। तो इस तरीके से हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। Now we take another topic related to appropriation. So this item is also appropriation, and the topic is calculation of partners commission. Partners के कमीशन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? पार्टनर्स का कमीशन उसी जैसे कैलकुलेट होता है जैसे कि हमने पहले वीडियो में मैनेजर के कमीशन को कैलकुलेट करना सीखा था। बस एक न्यू पॉइंट और है जो आपको यहाँ सीखना होगा। So now we learn that how to calculate manager commission, how to calculate partners commission. Okay. So first condition is on profit. Calculation किस पे होगी? Profit पे कैलकुलेट होगा। On profit before charging such commission. Before charging का केस है। Before charging के केस में easily कैलकुलेट होती है कमीशन कैसे? Profit into rate upon 100. इससे क्या होगा? पार्टनर्स की कमीशन की कैलकुलेशन हो जाएगी। नाउ सेकंड केस प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग के केस में क्या होता है कि जो कमीशन कैलकुलेट होता है वो उस प्रॉफिट पे होगा जिसमें से आफ्टर सच कमीशन हो गया होगा, तो प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देते हैं। यानी आफ्टर चार्जिंग के केस में क्या करते हैं, प्रॉफिट पे कैलकुलेशन तो करनी है हमें कमीशन की, कैसे करते हैं
इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी कि रेट को नीचे ऐड कर देते हैं। एक न्यू कंडीशन अराइज और हो जाती है यहाँ पे, वो क्या, ऑन प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन, यानी आफ्टर में क्या क्या करना है, सैलरी, पार्टनर की सैलरी माइनस कर देनी है, पार्टनर की इंटरेस्ट माइनस कर देनी है और पार्टनर का कमीशन भी माइनस कर देना है। उसके बाद उस कमीशन की कैलकुलेशन करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड इंटरेस्ट, क्योंकि कमीशन तो हमें पता नहीं है, तो सैलरी तो पता है और इंटरेस्ट पता है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में से पार्टनर की सैलरी माइनस करेंगे और पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस कर देंगे। इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट पे कमीशन की कैलकुलेशन होगी। तो पार्टनर कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट, ये कौन सा प्रॉफिट है जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया है, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। यहाँ पर भी हमें रेट को ऐड कर देना है, पहले प्रॉफिट को अमेंड करना है, उसके बाद रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देना है। और ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, उसमें से सैलरी माइनस कर देंगे और पार्टनर्स की इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। इस तरीके से पार्टनर्स के कमीशन की कैलकुलेशन के 3 पॉइंट बनते हैं। इन तीनों पॉइंट को क्वेश्चन में यूज किया जाता है। इससे रिलेटेड आपकी बुक में कई सारे इस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें पार्टनर्स के कमीशन को कैसे कैलकुलेट करना है, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देखें।